ایک بادشاہ کی اپنی ملکہ سے بے انتہا محبت کی کہانی ہے۔ بادشاہ کی خواہش یہ تھی کہ ملکہ اس سے وارفتگی سے اپنی محبت کا اظہار کرے، لیکن ملکہ شاہی آداب کی پابندی کرتی تھی۔ بادشاہ اپنی حسین و جواں سال ملکہ کو دیوانہ وار چاہتا تھا۔ ملکہ دل ہی دل میں اس کی الفت پر ناز کرتی، مگر فطرتنا وہ عورتوں کے اس غیور و خود سر طبقہ میں سے تھی جو دنیا میں کسی کو اپنی کمزوری سے باخبر کرنا اور اپنے تئیں اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا عورت کے وقار کے منافی سمجھتا ہے۔ وہ انسان تھی اور انسانوں کی طرح اس کے سینے میں بھی درد و محبت کا طوفان بارہا اٹھتا، مگر اس کا جذبہ خودداری اسے دبا لینے میں کامیاب ہو جاتا۔ جب وہ بادشاہ کو آتے دیکھتی تو اس کی نظریں وفور ادب سے جھک جاتی، کان فرمان شاہی کے منتظر ہو جاتے، وہ تسلیم و اطاعت کا ایک پیکر بن جاتی تھی۔ بادشاہ اسی چیز سے اکتا چپکا تھا۔ جب وہ سلطنت کے کاروبار سے فارغ ہے کر تھکا ہارا محل میں آتا تو چاہتا کہ کوئی ایسا رفیق و دمساز ہو جو محبت کے میٹھے اور جاں نواز کلمات سے میرے دل کو تسکین دے، جو بجائے مجھ کو مخاطب کرنے کے میرے دل سے ہم کلام ہو۔ اس کے برعکس ملکہ کے پرتکلف، رسمی اور محبت سے آری الفاظ اس کے دل میں نشتر بن کر چبھ جاتے تھے۔ ایک مدت گزر گئی مگر ملکہ کے برتاؤ میں ذرا فرق نہ آیا۔ اس کی نگاہوں میں بادشاہ کا احترام جیسا پہلے تھا ویسا ہی اب بھی تھا۔ وہ اس کی خدمت گزاری میں کوئی دقیقہ نہ اٹھا رکھتی تھی، مگر وہ کلمہ محبت جسے سننے کے لیے بادشاہ کے کان بے تاب رہتے تھے اس کے منہ سے کبھی نہ نکلتا۔ اتفاق سے اس عرصہ میں بادشاہ کے ہاں کوئی اولاد بھی نہ ہوئی جو اپنی ماں کی سرد مہری کا نام البدل بن جاتی، جسے پروان چڑھتے دیکھ کر بادشاہ کے دل میں امیدیں اور امنگیں پیدا ہوتی اور پھلتی پیولت۔ بادشاہ روز بروز لطف زیست سے مایوس ہوتا جاتا تھا۔ ایک دن جب بادشاہ دربار جانے لگا تو ملکہ اس کے پاس آئی اور بڑے ہمدردانہ لہجہ میں کہنے لگی، آلیجا، آپ دوسری شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا عجب دوسری عورت سے آپ کے ہاں اولاد ہو جائے جو آپ کے بعد تخت و تاج کی وارث بنے اور آپ کا نام قائم رکھے؟ میں آپ کو سچے دل سے اس کی اجازت دیتی ہوں۔ یقین جانیے سود کے آنے سے میرے دل کا امن اور چین بحال رہے گا۔ بادشاہ نے کسی قدر خشمگی نظروں سے ملکہ کی طرف دیکھا۔ اف، یہ عورت احساسات سے کس درجہ خالی ہے، گوشت پوشت کی نہیں پتھر کی بنی ہے اور اس کے سینے میں دل بھی پتھر ہی کا ہے۔ بادشاہ نے نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور محل سے باہر نکل گیا۔ تو کیا اس عورت کو سزا دینی چاہیے اور اس التفات شاہانہ کا جس کی وہ تنہا مالک ہے کسی اور کو بھی حصہ دار بنا دینا چاہیے؟ بادشاہ دن بھر طرح طرح کے خیالوں میں آہیں بھرتا رہا۔ اسے ملکہ سے بے حد الفت تھی، ایسی الفت جیسی صرف شاعروں کا تخیل ہی تخلیق کر سکتا ہے۔ وہ اس قسم کے چاہنے والوں میں سے تھا جو محبوب کی ہر تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر درد و کرب سے کراہتے ہیں۔ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ دوسری شادی نہ کروں گا۔ بادشاہ بے حد افسردہ اور ملول رہنے لگا، نہ کسی سے بات کرتا نہ کسی سے ملتا، اپنے ہی خیالوں میں کھویا رہتا۔ سلطنت کے کسی کام میں اس کا دل نہ لگتا، روز بروز رعایا کے سودوزیاں سے بے پرواہ ہوتا جاتا۔ اماد سلطنت اس کی یہ حالت دیکھ کر کرتے مگر دم نہ مارتے۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ کوئی غم بادشاہ کو اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے، مگر اس غم کا سبب پوچھنے کی انہیں جرت نہ ہوتی تھی۔ وہ اس کا دل بہلانے کے لیے اسے شکار کو لے جاتے، شمشیر زنی اور نبرد آزمائی کے اکھاڑے منعقد کراتے، دور دور کے باکمال سے باکمال مغنی بلاتے، سکرو سے سکرو رقاصہ لڑکیاں اس کے دربار میں پیش کی جاتی۔ لیکن اس قسم کے مشاغل چونکہ جذبات کو اکساتے اور دل میں ولولے پیدا کر دیتے، اس لیے بادشاہ بجائے لطف اندوز ہونے کے اور افسردہ ہو جاتا تھا۔ ہاں ایک شغل تھا جس سے اسے کسی قدر تسکین حاصل ہوتی تھی، فن مصوری۔ بادشاہ کے پاس قلمی تصاویر کا ایک نادر و نایاب ذخیرہ تھا جس میں آئے دن اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ بادشاہ کی صنعت پرستی اور قدردانی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، چنانچہ جوان تو جوان بڈھے اور نحیف سنا بھی قدردانی کے بھروسے پر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آتے اور اپنی محنت کی داد امیدوں سے بڑھ کر پاتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا سنگ تراش ایک مرمری مجسمہ لیے ہوئے بادشاہ کے حضور میں پیش ہوا۔ یہ ایک حسین عورت کی شبیہ تھی، صنعت کا نادر ترین نمونہ۔ معلوم ہوتا تھا کسی وارفتہ مزاج ساحر نے پتھر کے ایک بے جان ٹکڑے میں عشق کا گرم سانس پھونک کر اسے حیات دوام بخش دی ہے۔ یہ شبیہ اس دنیا کی کسی عورت کی نقل نہ تھی۔
बल्कि वो सन्ना के तखय्युल की इन औरतों में से एक थी जिनकी हमसरी आलम बाला की औरतें और दीबियां भी नहीं कर सकती। बादशाह सनत के इस अजीब व गरीब नमूने को देखकर बेहद महजूज हुआ। बूढ़े सन्ना को निहाल कर दिया और मुजस्समा अपनी ख्वाबगाह में एक ऐसी जगह रखवा लिया कि नजर हर वक्त इस पर पड़ती रहे। ये मुजस्समा 1.5-2 फुट से ज्यादा ना था, मगर सन तराश ने इसमें ऐसी जिंदगी भर दी थी कि इसे देखकर उसके कदोकामत का एहसास तक ना होता था। यही मालूम होता कि बादलों की रंगीन दुनिया का एक पैकर हसन ओ शबाब है जिसे सेहर ओ अफसों से साकित कर दिया गया है, जिसके साकित आज़ा में मचलने की आरज़ुएं बेताब हैं, जिसके नम आलूद होंठों में हम कलामी की तमन्ना आंखें खोल रही है। उठते बैठते बादशाह की निगाह इस मुजस्समे पर पड़ती और वहीं जिम जाती थी। इसकी ख्वाबगाह में सनत और हिरफत की बीसियों चीजें थीं, मगर ना जाने मुजस्समा में क्या बात थी कि वो इसे दूसरी चीजों की तरफ मुतवज्जे न होने देती थी। बाज़ औकात वो पहरों महवियत के आलम में खड़ा इसे तकता रहता। ऐसा मालूम होता था जैसे इसके और मुजस्समा के दरमियान नामालूम तौर पर एक रिश्ता, एक ताल्लुक पैदा हो गया है जो बतदरीज बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ बादशाह की हालत में भी एक तगय्युर होता जाता था। मलिका की संग दिल्ली और बेमहरी का गम तो किसी वक्त भी दिल से दूर ना होता था, मगर अब इस गम को मिटाने का एक हद तक जरिया इसके हाथ आ गया था। औरत से यूं कहो मलिका से वो जिस चीज का ख्वाह था वो एक हद तक इसे इस मुजस्समा से हासिल हो रही थी। मलिका को इस हुसैन मुजस्समा का इल्म था और वो जानती थी कि बादशाह इसे तहसीन की कैसी नजरों से देखता है। इसने कई बार बादशाह को महवियत के आलम में इस मुजस्समा की तरफ तकते भी देखता था। इसे ये भी एहसास था कि मेरे साथ बादशाह के बर्ताव में फर्क आ गया है और वो मुझसे दूर दूर रहने लगा है। वो ये सब कुछ जानती थी मगर मोतरिज ना होती थी। बिहार का मौसम आया। आंखों में अब से अब एक खुमार, दिल में एक दर्द और रूह में एक तशनगी पैदा हो जाने का मौसम आया, जब हर जानदार अपने लिए एक मोनस और दमसाज की जस्तजू करता है। एक दिन सुबह को बादशाह बिस्तर से उठा तो बहुत बेचैन था। रात इसे अपनी कम नसीबी का एहसास शिद्दत से हुआ था। करवटें बदलते बदलते सुबह कर दी थी। मलिका से इसे जितनी शिकायतें और रंजिशें थीं वो सब ताज़ा हो गई थीं। उन ख्यालात का असर अब तक ज़ाइल न हुआ था। वो आहिस्ता से उठकर दरीचे के पास जा खड़ा हुआ। नीचे पाए बाग में खुश गुल्लू परिंदों के चहचहे बिहार को रंगीन तर बना रहे थे। बादशाह और भी अफसुर्दा होकर दरीचे के पास से चला आया। अब उसकी नजर मुजस्समा पर पड़ी। आज ये मुजस्समा इसे जिस कदर हुसैन मालूम हुआ पहले कभी ना हुआ था। बूढ़े संग तराश के तखय्युल की ये नामालूम औरत आज इस कदर जिंदा नजर आती थी, गोया अगर बादशाह ने इसका हाथ पकड़कर खींच लिया तो नाज के साथ अपने नन्हे नन्हे पांव उठाती हुई बेहिजाबाना इसके पास चली आएगी। बादशाह बहुत देर तक इसके सामने खड़ा इसे तकता रहा। मलिका कई बार ख्वाबगाह में आई मगर बादशाह को इस महवियत के आलम में देखकर उल्टे पांव लूट गई। दोपहर होने को आई मगर बादशाह इस मुजस्समा के पास से ना हटा। अचानक किसी ने इसके शाने पर हाथ रखा। बादशाह चौंक उठा, पलट कर देखा तो मलिका थी। वो बोली, आज क्या बात है, आप ऐसे अफसुर्दा नजर आते हैं, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। बादशाह ने जवाब दिया, हाँ सुबह मेरी तबीयत कुछ अच्छी ना थी। ये कहकर वो फिर मुजस्समा को देखने में महव हो गया। मलिका आगे बढ़कर मुजस्समा के सामने खड़ी हो गई और इसे बादशाह की नजरों से ओझल कर दिया। बोली, बस बहुत देख चुके, चलिए नाश्ता करें। आज सुबह मेरी तबीयत भी गिरी गिरी थी, इसलिए मैंने भी अब तक नाश्ता नहीं किया। मलिका की जुबान से ये फिक्रा सुनकर बादशाह चौंक उठा। इसके बाद वो मलिका के साथ खाने के कमरे में चला गया। गो चंद लकमोहे से ज्यादा ना खा सका मगर आज इसे एक ऐसी लज्जत का एहसास हुआ जिससे वो आशना ना था। इस दिन बादशाह की जिंदगी में एक नया तगय्युर रूनुमा हुआ। पहले की तरह वो अब मुजस्समा को अफसुर्दगी से ना देखता और ना इसे देखकर इस पर महवियत तारी होती, बल्कि जिस तरह कोई बच्चा अपने महबूब खिलौने से खेलकर खुश होता है, इसी तरह वो मुजस्समा से खेलकर लुत्फ अंदोज होता था। वो इसके छोटे से खूबसूरत सर पर हाथ फेरता, इसके आज़ा को छूता, उंगलियों से इसकी ठोड़ी पकड़कर प्यार से झंझोड़ता, अपने हाथ से फूलों का ताज बनाकर मोहब्बत से इसके सर पर रखता और खुश होता। मलिका ने बादशाह की उन हरकत को बारहा देखा और इसे इसकी अक्ल और समझ पर शुबा हुआ।
मगर जब वो इससे हम कलाम होती तो इसे पहले से भी बढ़कर अक्लमंद और होशमंद पाती। अब मलिका के रवैया में भी फर्क आने लगा था। सुबह को जब वो बादशाह को जगाने आती तो ये देख कर कि वो पहले ही से बेदार है और हसब मामूल मुजस्समा से खेलने में मशगूल है, पहले की तरह उल्टे पांव ना लूट जाती थी, बल्कि अब वो बादशाह को कभी सैर की गरज से और कभी नाश्ते के लिए गरज किसी न किसी बहाने ख्वाबगाह से बाहर ले जाती थी। बादशाह मलिका के इस तगय्युर से बेखबर न था और उससे एक खास हज़ उठाता था। एक दिन महल में एक अजीब वाक़या हुआ। सुबह को जब बादशाह बिस्तर से उठा और हसब मामूल इस हसीना के मुजस्समा के करीब आया तो देखा कि इसके दाहिने गाल पर सियाही का बड़ा सा बदनुमा धब्बा लगा है। ये देखकर बादशाह की आंखों में खून उतर आया, पेशानी पर बिल पड़ गए, गैज़ व गज़ब के आलम में मुट्ठियां बंद हो गईं। चाहता था कि दुनिया और उसकी हर चीज को तहबाला कर दे कि अचानक किसी ख्याल ने इसका हाथ रोक दिया। वो चेहरा जो गुस्से से तारीक हो गया था आहिस्ता आहिस्ता रोशन होने लगा और उसके होंठों पर एक खफीफ सा तबस्सुम नमूदार हो गया। इसके बाद बादशाह ने महल के तमाम लौंडी गुलामों को बुलाया और गैज़ व गज़ब के देवता की तरह गिरजा बरसा। 2 गुलामों पर शुबा जाहिर किया और उनके कूड़े लगवाए। फिर पानी, बुश और समंदर झाग मंगवाया और खुद ही इस मुजस्समा के गाल पर से सियाही का धब्बा दूर करने में मसरूफ हो गया। मलिका सहमी हुई और धड़कते हुए दिल के साथ ये सब माजरा देखती रही। आदाब शाही ने इसकी जुबान से एक हर्फ भी ना निकलने दिया। जब तक बादशाह मुजस्समा के गाल से धब्बा दूर करने में मसरूफ रहा, वो इसके पास ही खड़ी रही, मगर इस असना में इसने एक बार भी आंख उठाकर उसकी तरफ ना देखा। जब बादशाह इस काम से फारिग हो गया तो उसने बड़ी मोहब्बत से मुजस्समा की तरफ देखा। मलिका चुपचाप वहां से चली आई। इस वाक़ये को 2 हफ्ते गुजर गए। एक दिन एक इससे भी बढ़कर नागवार वाक़या पेश आया। बादशाह सुबह को उठकर मुजस्समा के पास आया तो देखा कि इसकी दोनों आंखें फूटी हुई हैं। मुजस्समा की आंखें बादशाह को बहुत महबूब थीं और वो उन्हें जल परियों की जुमर्दे आंखों से तशबीह दिया करता था, मगर ये देखकर बादशाह बजाय गजबनाक होने के खिलखिलाकर हंस पड़ा। महल के सब लौंडी गुलाम तलब किए गए और उनकी पीठ पर कूड़े लगवाए गए। इस दिन बादशाह को ऐसी खुशी हुई कि शायद किसी बड़े गनीम पर फतह पाने से भी ना होती। मुजस्समा के ऐबदार हो जाने पर भी बादशाह की नजरों में इसकी वक़्त वैसी ही रही जैसी पहले थी और वो हर रोज इसी फफ्तगी से इससे खेला करता। इसके बाद एक दिन बादशाह ने देखा कि मुजस्समा के दोनों कान कटे हुए हैं। ये वही कान थे जिन्हें बादशाह सदफ सीमी कहा करता था। फिर एक दिन देखा कि इसकी नाक कट्टी हुई है। इसके बाद एक दिन देखा कि इसके सीने पर किसी तेज हथियार से ज़रबें लगी हुई है। हर दफा बेचारे लौंडी गुलामों की शामत आ जाती थी, लेकिन फिर भी बादशाह इस मुजस्समा का वैसा ही गिरवीदा रहा। अब भी घंटों इससे खेलने में मशगूल रहता। एक दिन सुबह को बादशाह जरा देर से उठा। रात इसे बड़े सिक की नींद आई थी। उम्र भर ऐसी मीठी नींद कभी ना सोया था। अंगड़ाई लेता हुआ उठ बैठा। जो ही मुजस्समा की तरफ नजर गई तो मुंह से बेइख्तियार चीख निकल गई। क्या देखता है कि फर्श पर संगमरमर के हजारों छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हैं। दूसरे लम्हा मलिका इसके कदमों में थी।